Hello guys, welcome back to my channel. I'm Rachita. You already know that. So in today's video, we are going to talk about language cert. And in order to clear the doubts, what is language cert? Language cert क्या है? Because many students are coming and asking me, मैम ये क्या है? IELTS होता है, PT होता है, TOEFL होता है, language cert क्या है? और आप अपने वीडियोस में भी मेंशन करते हो. तो उस चीज के डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ मिस्टर गिनीश को. So guys, meet Mr. Ginesh. He is the business development manager at Language Cert. Hi Rachita ma'am, thank you so much first of all for inviting me at your place for this beautiful video, and hi guys from my side as well. My name is Ginesh Vadera. I'm the business development manager for states in North India. I have been in the education space for more than 7 years now, and lately I've been understanding the study abroad education space, study abroad vertical of things. तो language cert में I'm taking care of business development North India की कई सारी states का, and I'm happy to share with you we are growing rapidly by the day, and thanks for inviting me again. I would love to clear all the doubts जो भी आपके बच्चों के हैं. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के डाउट्स सॉल्व करने वाली हूँ, स्पेशली जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं. So the first question is, sir, language cert है क्या? So I'll answer it very simply. जैसे कि बाकी अदर टेस्ट हैं जिनका आपने नाम लिया, आप नाम लेते हो IELTS, TOEFL, PT. We are a similar test. 4 facet टेस्ट है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. आप आज मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो लैंग्वेज सर्ट है क्या, बिकॉज वी आर न्यू इन द इंडियन मार्केट. बट वी आर नॉट अ न्यू टेस्ट. हम एक बहुत पुराना टेस्ट है. वी स्टार्टेड इन 2015, बेस्ड इट इन यूके. तो 10 साल पुराना टेस्ट है हमारा. इंडिया में नया टेस्ट है, बट सिमिलर टू एनी अदर टेस्ट. ऑब्वियसली कुछ यूएसपीज हैं हमारे टेस्ट की जो हमारे टेस्ट को आई वुड से बेटर बनाती है बाकियों से. एंड बट ऑल इन ऑल सिमिलर टेस्ट. आपको बाहर पढ़ने जाना है, माइग्रेट करना है, यू कैन टेक द लैंग्वेज सर्ट टेस्ट. तो एज यू सेड कि ये एक एग्जाम है, ये 10 इयर्स पुराना एग्जाम है, इंडिया में न्यूली लॉन्च हुआ है, करेक्ट सर? सो नेक्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आती है, तो क्या ये किस किस चीज को टैकल करता है? कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ये ऑलरेडी चल रहा है, या कितना मतलब फेमस है, कौन कौन एक्सेप्ट करता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब लोग पूछते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर हम लैंग्वेज सर्ट अकेडमिक की बात करते हैं तो लैंग्वेज सर्ट अकेडमिक is approved by 100 plus governments across the globe. It is accepted by 3000 plus colleges and universities globally. Majorly, जहां पर इंडिया का बच्चा जाता है, majorly it is accepted by the UK Home Office. So we are a UKVI approved test, and very happy to share we are accepted by 90% plus colleges, universities in UK. Okay. One. Then after UK, we recently got approval from Department of Home Affairs Australia for all types of visas. तो आपको स्टडी वीजा के लिए जाना है, सिमिलर विद यूके. आपको स्टडी वीजा के लिए जाना है, आपको माइग्रेट करना है, वर्क वीजा के लिए जाना है, पीआर, टीआर, वी आर अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वीजास. तो आप लैंग्वेज सर्ट अकेडमिक लोगे, वी केटर टू ऑल योर नीड्स. एंड अदर देन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, वी आर अप्रूव्ड बाय आयरलैंड, वी आर अप्रूव्ड बाय न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड में NZQA अप्रूव्स अस. तो वहां पर स्टडी वीजा एप्लीकेशंस के लिए हमारा एक और टेस्ट है, ESOL, which works there. And we are approved by a lot of countries in Europe as well. Recently we got approved by Poland. We got approved by Netherlands. तो आजकल बच्चों का एक destination, they want to go to Europe. So Yes. we are working on that rigorously. तो Australia, UK, Ireland, New Zealand, Poland, Netherlands, I can go on and on, 100 plus countries. So like हम अगर IELTS and PT की बात करें, so we have academics या academics और general. तो इसमें भी कुछ bifurcations है, or is it same for everyone? Yes, we have different suite of products. We have language cert academic, we have language cert general. We do have CELT versions of these tests as well. Since I said we are a UKVI approved test, तो उसका CELT version है हमारे टेस्ट का, Secured English Language Test, which is approved by the UK Home Office. So language cert academic, language cert general, language cert academic CELT, language cert general CELT. Other than that, we have a lot of different tests because we want to cater to the whole community, whole ecosystem. So we have tests ranging from as young as a third
क्लास स्टूडेंट जो अभी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है एंड उसको एक टेस्ट लेना है, आई वांट टू टेस्ट माय इंग्लिश, या स्कूल बोल रहा है कि वी वांट टू टेस्ट योर इंग्लिश, तो वी हैव अ यंग लर्नर टेस्ट फॉर देम. If you move ahead, we have a ESOL for school test जो 10th class, 9th class onwards बच्चों के लिए है, 14 years above बच्चों के लिए है. We have a test called Language Cert Test of English, short form LTE, which is for working professionals and for कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिनको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी है जब वो कैंपस रिक्रूटमेंट के टाइम पे बैठ रहे हैं एंड दे वांट टू शोकेस देयर English proficiency that I'm certified, I'm B2 level certified, C1 level certified. We have LTE exam and then we talked about Language Cert Academic जो आपके study abroad के लिए काम करेगा, Language Cert General जो आपके work and all of that के लिए work करेगा. So we are trying to cater to the whole industry. Okay. सर आपने बोला A1 level, B1 level. So अब levels की बात आ गई है. So the next question that I'll be asking you over here is कि ये भी European framework पे work करते हैं और is there any other parameter or criteria you people are working to check the exam? So जो levels की हम बात कर रहे हैं, these are CEFR levels, Common European Framework for Reference, right? Correct. ये so how we score the candidates is we give raw scores out of 100. आपने स्कूलिंग करी है, मैंने स्कूलिंग करी है, इंडिया में तो एटलीस्ट हमें 100 में से ही हमेशा मार्क्स मिलते थे. मुझे कभी 120 में से या 90 में से या 70 में से मार्क्स नहीं मिले, हमेशा 100 में से मार्क्स मिले, राइट? सो in our test you are scored out of 100. Those are raw scores and when you get your report उसमें we convert these scores into CEFR levels. For example, out of 100 अगर आपके 70 marks आए हैं, we convert it into CEFR level, that would be a B2 level. So next thing जो मैं पूछना चाहूंगी और सब लोगों का एक बहुत मेजर कंसर्न है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब कंडक्ट होता है, कितने दिन में रिजल्ट आता है, चारों मॉड्यूल्स इकट्ठे होते हैं या कुछ सेपरेट होता है, फेस टू फेस है, कंप्यूटर बेस है, पेपर पेन बेस है. सो वी नीड दैट क्लैरिटी. A lot of questions. Okay. We are a computer based test only. We don't have a pen paper based version, but we do have a home based version. तो computer based test है fully. आप हमारे टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट दे सकते हो या फिर आप from the comfort of your home you can take the test. So both versions are available, right? If you want to take a test from a test center, you can book the test at least 24 hours prior to the test. So a biggest USP that we have हमारे टेस्ट में कि आज बैठ के आपको कल के टेस्ट का स्लॉट मिल जाएगा, राइट? तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी. नाउ यू आर आस्किंग मी कि आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ सेम डे पे देना है या अलग अलग डेज पे देना है. Answer is simple, totally your call. Listening, reading, writing is at one go. तो listening, reading, writing आप आज दे सकते हो, उसके साथ साथ स्पीकिंग भी आप आज दे सकते हो if you want to do that. If not, तो स्पीकिंग आप एक 14-day विंडो में कभी भी दे सकते हो कि let's say today is 19th और आपको आज स्पीकिंग नहीं देना, आपका आज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग है, स्पीकिंग आपको 24th को देना है, उस पर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो यू कैन बुक दैट फॉर 24th. 14-day पीरियड में कभी भी यू कैन गिव द स्पीकिंग वाला पार्ट. So ये this we can choose the date या we get the options that you can like in IELTS usually what happens is that earlier we used to get options. Right now we have one specific day, we just need to choose the timings. So is it like that we get the option for date as well or just for the timing or how so it? You get options for date, you get options for timing, but अच्छी बात यह है कि हम हमारे टेस्ट सेंटर्स को फ्रीडम देते हैं कि वो स्लॉट चूज करके ओपन कर सकते हैं अपने स्लॉट्स, राइट? बट उसके साथ साथ वी हैव सम पॉलिसी टू मेक श्योर कि आपको वो 24 आवर्स प्रायर वाली चीज रहे, राइट? तो आप आज बैठ के कल के लिए बुक कर सको एंड ऑल ऑफ दैट. Next question, sir. In how much time do we get our result? Okay. So we give out the results in 5 business days. In my experience, I got my result in 3 business days. But to have a buffer, we tell everyone that we give results in 5 business days ताकि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, we should not take a lot of time. तो 5 दिनों में आपको आपका रिजल्ट हो जाता है. How much is the validity of this examination? Okay. एग्जाम की वैलिडिटी हमेशा इनडेफिनेट होती है, हमेशा अनलिमिटेड वैलिडिटी होती है. आपने आज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया है तो वैलिडिटी तो अनलिमिटेड है उसकी, बट एवरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्लोबली द ट्रेंड इज कि 2 साल
तक के पीरियड में आपने वो टेस्ट दिया होना चाहिए, चाहे कोई सा भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट हो। तो लैंग्वेज सर्ट की भी बात करते हैं तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब और रादर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली आस्क कि पिछले 2 साल में ही आपने टेस्ट दिया हो, सो दैट वेज द वैलिडिटी बिकम्स 2 years. How can someone register for the exam? Like people often get confused कि मैं कहाँ जाके रजिस्टर करूँ, कैसे रजिस्टर करूँ, और मेरे को स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, मेरे को प्रैक्टिस किधर जैसे प्रोवाइडेड होगी। बहुत सारी साइट्स हैं जो IELTS, TOEFL, PTE के लिए मटेरियल प्रोवाइड करती है। यूट्यूब पे अनलिमिटेड मटेरियल है। सो हाँ, आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ टाइम में सारा मटेरियल लॉन्च करूंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स कहाँ जाके प्रैक्टिस करें? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि टेस्ट बुक कहां पर जाकर करें, राइट? सिंस वी आर अगेन न्यू इन द इंडियन मार्केट, वी हैव आवर टेस्ट सेंटर्स, वी हैव टेस्ट सेंटर्स विद पार्टनर्स हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो अगर आप उनसे टच में हो, लाइक समवन लाइक एन IMA, अगर आप IMA के साथ टच में हो, दे कैन बुक द एग्जाम थ्रू यू, और दे कैन डायरेक्टली गो ऑन टू आवर वेबसाइट, गो ऑन टू द स्टूडेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट, और वहां पर जाके बच्चे एग्जाम बुक कर सकते हैं। तो पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया, ये उनके पास अवेलेबल होगा, दे वुड हैव द वाउचर इन द फ्यूचर, एंड वहां से बच्चा अगर उनके साथ कनेक्टेड है वहां से बुक करे, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे आप languagecert.org पे जाओगे, स्टूडेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट में जाओगे, एंड यू विल बुक द टेस्ट। एंड प्रिपरेशन सर, बिगेस्ट क्वेश्चन, कहाँ से तैयारी की जाए? Again, very important. We have a lot of preparation material with us, but having said that, we are working towards getting more material, क्योंकि more the material, merrier it is. We have a lot of test prep material available on our website. We'll try to give the link to the students in the description, and वहां से बच्चे prepare कर सकते हैं। Other than that, they can get connected with you. We'll help you with the physical books, practice test papers, and उन practice test papers से बच्चे prepare कर सकते हैं। Most importantly, we have created a portal, an LMS, जिसपे बच्चे लिस्टिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू गेट रियल टाइम स्कोर्स। अगर आप स्पीकिंग की बात कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो उस पे स्पीकिंग, एंड देन यू कैन गिव इट टू योर टेस्ट प्रेप टीचर जो भी आपको पढ़ा रही हैं, राइट? तो वहां पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। देयर आर सैंपल आंसर्स देयर, एवरीथिंग। वी वुड प्रोवाइड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगेन, so that student prepare कर सके। And again, having said that, और मटेरियल वी आर ट्राइंग टू मेक, क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ही आपके बच्चों के लिए आसान। इसके अलावा वी हैव आवर लैंग्वेज सर्ट का यूट्यूब चैनल, जिसपे हम कई सारी वीडियोस डालते रहते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ वेबिनार्स फॉर टीचर्स एंड ट्रेनर्स। तो टीचर्स और ट्रेनर्स को भी हम बहुत ज्यादा ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में जैसे पुराने टेस्ट हैं उनके लिए हर कोई मटेरियल बना रहा है, हमारे लिए भी हर कोई मटेरियल बनाए, ताकि एक वो स्नोबॉल इफेक्ट हो और हर जगह लैंग्वेज सर्ट का मटेरियल अवेलेबल हो। तो यूट्यूब पे भी है हमारे पास, एंड वी आर टीचिंग ट्रेनर्स लाइक यू, ताकि हम बहुत अच्छे से हमारे लिए वंडरफुल मटेरियल बना सको। हमारा काम थोड़ा कम। What are the major mistakes that people often make while registering for the exam, and what actually they need to have while they are applying for the exam? बहुत सिंपल है। जब आप रजिस्टर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो यू नीड टू हैव वन मेजर थिंग विद यू, विच इज योर पासपोर्ट, राइट? जब आप रजिस्टर कर रहे हो, आपसे नाम मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, पासपोर्ट नंबर मांगेगा, ये सारी चीजें मांगेगा, एंड यू नीड टू हैव दैट रेडिली अवेलेबल व्हेन यू आर बुकिंग द एग्जाम। मिस्टेक्स की बात करते हैं तो अगेन पासपोर्ट आ जाता है। रिसेंट केस, अ स्टूडेंट वेंट टू गिव द एग्जाम और पासपोर्ट अपना घर पे भूल गए। तो ऐसी मिस्टेक्स मत करना कोई, कि आपने रजिस्टर कर लिया, पैसे खर्च दिए, सब कुछ कर दिया, एंड यू फॉरगॉट योर पासपोर्ट एट होम। So we need to have a physical copy of our passport while we are appearing for the exam. Yes, which is very important, because वहां पे इन्विजिलेशन के टाइम पे they check your passport. Okay. So, sir, like in other exams, some other exams, students get a rough sheet, paper, pen. So, do we get anything in this also? Yes, in our speaking section, speaking का section 4 है, where you have to present something. एक डेटा होता है, उसको देख के you have to present. तो उसके लिए we give you a rough sheet and a pencil so that you can make your notes. Okay. Other than that, in any other part, there we aren't allowed to do it. No. Okay. So, what is the price of this exam? अगर हम monetary terms में बात करें, सस्ता है, महंगा है, बाकी एग्जाम से कंपैरिजन में कैसा है?
नहीं, आर टेस्ट इज डिसेंटली प्राइस्ड, बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है. इफ यू कंपेयर इट विद अदर टेस्ट तो उसके आसपास ही आपको दिखेगा, बट अ लिटिल चीपर. आर टेस्ट इज प्राइस्ड एट 15,500 INR. तो बच्चे के लिए डायरेक्टली अगर बच्चा हमारी वेबसाइट पे जाके बुक करना चाहेगा, they'll have to pay 15,500. But since we are partnering with a lot of agents, a lot of consultants in India, तो there can be थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट हर जगह पे, बट द एक्चुअल प्राइस इज 15,500 फॉर द. तो गाइज आई होप आप लोगों को ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो गए हों, ठीक है. बट सर, इफ आई वुड आस्क कि आपके एग्जाम की ऐसी क्या यूएसपी है कि बाकी जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो IELTS हो गया, PT हो गया, TOEFL हो गया, एंड n नंबर ऑफ एग्जाम्स, तो ये उनसे डिफरेंट कैसे है, या उसमें ऐसी क्या स्पेशलाइजेशन है कि लोगों को लैंग्वेज सर्ट देना चाहिए, बाकी नहीं देने चाहिए? बाकी भी देने चाहिए, बट ऑब्वियसली अगर हम यूएसपीज की बात कर रहे हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ यूएसपीज. आई कैन टेक अ होल डे एंड टेल यू अबाउट द यूएसपीज, बट अकेडमिक वाइज इफ यू वांट टू टॉक अबाउट आवर यूएसपीज, 4 सेक्शंस हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. हर सेक्शन में वी हैव ट्राइड टू मेक अ फ्यू यूएसपीज की अच्छी चीजें यहां से उठाएं, अच्छी चीजें यहां से उठाएं और क्लब करके बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बना दें. So basically it is a combination of all the exams we can say. Yes, combination of अच्छी चीज. अच्छी. Yes. तो लिसनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी टेस्ट जिसमें लिसनिंग ऑडियो 2 बार प्ले होता हो. हमारे टेस्ट में द लिसनिंग ऑडियो इज प्लेड ट्वाइस फॉर द स्टूडेंट, फॉर द कैंडिडेट. तो उससे ऑब्वियसली बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा. सो ये तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब एक बेनिफिशियल चीज होगी. इफ यू मिस आउट समथिंग, यू हैव द ऑप्शन टू लिसन नेक्स्ट टाइम. यस, तो वो डोमिनो इफेक्ट नहीं होगा. दिस इज आवर बिगेस्ट यूएसपी. वो डोमिनो इफेक्ट नहीं होगा. आपका एक क्वेश्चन छूट गया, आप पढ़ाते हो, यू वुड नो. एक क्वेश्चन छूट गया तो दूसरा भी छूट सकता है, तीसरा भी छूट सकता है, इफ यू गेट स्टक टू दैट वन क्वेश्चन. बट इफ यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो ट्वाइस, तो एक बार वो छूट गया तो आप दोबारा सुन सकते हो. पहली बारी में आपने कर लिया था तो दूसरी बारी में आप रिवाइज कर सकते हो. दिस इज अबाउट लिसनिंग. तो अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग इज विद अ लाइव इन्विजिलेटर ऑन अ वीडियो कॉल, राइट. एंड जो भी क्वेश्चंस है हमारे स्पीकिंग सेक्शन में, वो हाईली इंटरैक्शनल होते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू जज द इंटरैक्शनल क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट. एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, ओपिनियंस हैं इन स्पीकिंग सेक्शन, वी मेक श्योर कि वो रियल लाइफ बेस्ड हो, रियल लाइफ सिनेरियोज बेस्ड हो, ताकि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, राइट. वी शुड नॉट बी आस्किंग एनी क्वेश्चन लाइक हॉरिजॉन्टल फार्मिंग बेटर है या वर्टिकल फार्मिंग, आपकी ओपिनियन बताओ. ऐसा क्वेश्चन होगा तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. या फिर इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, विच टाइम पीरियड यू वुड वांट टू गो बैक टू. दिस इज वन क्वेश्चन दैट हैज स्टक टू मी, जो मैंने 4 साल पहले एक टेस्ट दिया था एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी. तो वहां पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कोई भी बच्चा हो जाएगा. सो वी मेक श्योर कि हमारे टेस्ट में, द लैंग्वेज सर्च टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रियल लाइफ सिनेरियोज बेस्ड ओनली ही हो. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज दैट वी हैव इन स्पीकिंग. रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग जो पैसेजेस होते हैं, रीडिंग पैसेजेस, बिगेस्ट पैसेज, लॉन्गेस्ट पैसेज इन आवर रीडिंग सेक्शन इज 650 to 700 वर्ड्स. इफ यू कंपेयर इट टू एनी अदर टेस्ट जिसमें 2200-2400 वर्ड्स के पैसेज हैं, वहां पर बच्चा घबरा जाएगा. ऑल्दो उसने ट्रिक्स लगानी है आंसर ढूंढने के लिए, वो लैंग्वेज सर्च में भी लगानी है और कहीं और भी लगानी है, बट 700 वर्ड का पैसेज और 2400 वर्ड का पैसेज, ऑब्वियसली जब वो 1/3 हो जाएगा तो आपको घबराहट कम होगी, राइट. अगर हम लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, राइटिंग की बात करते हैं. राइटिंग में वी हैव ओनली 2 सेक्शंस. लैंग्वेज सर्च एकेडमिक में ओनली 2 सेक्शंस इन राइटिंग, आउट ऑफ विच 1 सेक्शन इज एसे राइटिंग, जिसमें भी एक टाइप ऑफ एसे राइटिंग ओनली है. तो द वन टाइप ऑफ एसे राइटिंग इज कि आपको ओपिनियन देनी है दोनों साइड्स के बारे में बात करके. देयर विल ओनली बी वन टाइप ऑफ एसे राइटिंग इन लैंग्वेज. डिस्कस बोथ द साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. एग्जैक्टली. तो 5-7 टॉपिक्स नहीं है जिसपे आपको ये भी प्रिपेयर करना है, एसे राइटिंग में ये भी प्रिपेयर करना है, कुछ भी आ सकता है. नहीं, ओनली वन टाइप. डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. Thank you so much, Ganesh, for the most interactive session that we had. And see, basically, I think मेरे भी और स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे डाउट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज सर्ट एग्जाम हम क्लियर कर पाए हैं. एंड स्टिल गाइज, अगर आपको कुछ भी और डाउट्स हैं तो आप जस्ट कमेंट डाउन करो, एंड हमारी टीम एंड गिरीश सर की टीम मिलके आपको बिल्कुल हेल्प करने का ट्राई करेगी.